جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ ناظرین آج کے بلٹن میں بھی دن بھر کے حالات و واقعات پر بات ہوگی۔ دیگر خبروں کے لیے لاگ ان کریں www.greaterkashmir.com۔ تو ناظرین آج کے بلٹن کا آغاز بھی اس عالمی خبر سے۔ جی ہاں ناظرین، یوکرین پر روس کے حملے کا آج تیسرا دن، لیکن حالات میں کسی بھی بہتری کے آثار نہیں دکھائی دیے۔ یوکرین کے حالات ہر گزرتے وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تازہ تفصیلات کے مطابق ابھی تک روسی حملے میں 198 لوگوں کی موت اور ہزاروں کی تعداد میں یوکرینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ روسی فوج بہت جلد کیف پر قبضے کی کوشش کرے گی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دارالحکومت کیف کو نہیں کھو سکتے اور آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ کی پیشکش بھی ٹھکرا دی، جس میں امریکہ نے انہیں بھاگنے میں مدد کرنے کا کہا تھا۔ زیلنسکی نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بھاگنے کے لیے پلین نہیں بلکہ لڑنے کے لیے ٹینک چاہیے۔ اسی دوران یوکرین میں موجود ہندوستانیوں کو واپس لانے کی کوشش میں بحری است بھیجے گئے طیارے نے 219 افراد سمیت ہندوستان کے لیے اڑان بھری۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے مطابق یوکرین سے نکالے گئے 219 ہندوستانیوں کے ساتھ پہلی پرواز رومانیہ سے ممبئی پہنچ گئی ہے۔ تاہم ناظرین ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ان 219 افراد میں جموں کشمیر کا بھی کوئی شامل ہے یا نہیں۔ اور اب رخ وادی کا۔ جی ہاں ناظرین، آج گپکار حامیوں کی جانب سے ایک اہم اجلاس پی ایچ ڈی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش واقع گپکار سری نگر میں منعقد ہوا، جس دوران اتحاد نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے زیر ترتیب مسودے کو مکمل کیا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران پی ایچ ڈی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ وائٹ پیپر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ کافی عرصے سے زیر ترتیب تھا اور اسے جموں کشمیر کے معاشی مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ پی ایچ ڈی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حد بندی کمیشن کی حالیہ سفارشات کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمیشن بی جے پی کے حق میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کمیشن نے جموں کشمیر میں لوگوں کو مزید دور کر دیا ہے۔ انتخابات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس انتخابات میں حصہ لے گی، جبکہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے بارے میں پوچھے جانے پر موصوف نے کہا کہ اس جنگ سے بھارت پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گراں فروشی بڑھ جائے گی اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی۔ Let me tell you first. Election is basis of democracy. And the very first thing in that democratic situation is the Delimitation Commission's report. What they have done is very unfortunate, very unfortunate. Because if they look at the one constituency, I'll tell you, parliamentary constituency of Anantnag, how is the member of parliament, if he's elected from Rajouri, going to look after the areas on this side of the mountain? Or the one that will be elected here from this side will look after the people of Poonch and Rajouri? You see, this is one instance I'm telling you. Well, we'll fight the election, there's no doubt. We're not going to run away from it. But these are things which pain us. That whereas they say that we want to bring people together, we want to remove their difficulties, and therefore we are trying to see that constituencies are made in such a manner that it's easy for people to have their cases projected. It doesn't seem that this delimitation has done that. It has further alienated people. That is one point. Second point, as far as the Ukraine and the problem there, that will not only affect India, it will affect the world. It's going to affect the world. Soon, as soon as elections will be over, you will find the prices of oils will increase because the crude is going to increase quite rapidly, and that will affect prices of all commodities, and particularly those who live in far-flung areas will be affected far more. Therefore, inflation will increase, and that inflation will be very difficult for the poor man to be able to sustain himself in honor and in dignity. So there is no doubt we would want peace to emerge as soon as possible.
that that peace is restored in that region. People are. Russia has also its own claim. They don't want NATO around them because they think that it affects their sovereignty. So it's for the world to realize their problem also. As I think the president of Russia has said, how would America feel if missiles are put as before in Cuba? Will they be able to not react to it? So as far as we are concerned, in Kashmir, Jammu and Kashmir, we feel it's adversely going to affect us, adversely. नाज़रीन, प्राइमरी सतह तक के स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू होने के बाद अब हाई स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं। याद रहे कि हुक्काम ने 3 मार्च से जम्मू कश्मीर के हाई स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसी दौरान काफ़ी अरसा से बंद पड़े स्कूलों में साफ़ सुथराई का काम भी जारी है और इंतज़ामिया की मदद से इन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 on Monday the schools are going to open. तो उस सिलसिले में हम बिल्कुल वी आर ईगर टू वेलकम आवर स्टूडेंट्स जो पिछले 2-2.5 सालों से स्कूल से ऑफ है। बिल्कुल जो ऑफलाइन एजुकेशन थी वो डिस्टर्ब हो गई है ड्यू टू COVID-19। तो इंशाल्लाह फॉर दिस रीओपनिंग ऑफ स्कूल आई हैव गेट अप ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, वेदर इज द टीचिंग स्टाफ, वेदर इज द नॉन टीचिंग स्टाफ, वेदर इज द ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आपने देखा आज हमारी लगभग फाइनल प्रिपरेशन हो गई है स्कूल ओपनिंग के लिए। क्योंकि ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट आई कि स्कूल ओपन होने वाले हैं कि वी टीचर्स आर रियली एक्साइटेड कि स्कूल ओपन हो रहे हैं और हम बच्चों को भी वेलकम कर रहे हैं और हमारे दिल के अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट है। और हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहते हैं कि हम जो स्कूल्स हैं ये कंटिन्यूसली ओपन रहने चाहिए क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर पूरी तरह से डिवास्टेट हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो एक तो पूरी जो वर्ल्ड है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जिससे पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आता है। अगर एजुकेशन सेक्टर्स बंद रहें तो पूरी वर्ल्ड में डिवास्टेशन आ सकता है। तो स्कूल्स ओपन रहने चाहिए और हम अच्छी तरह से ये SOPs फॉलो करेंगे, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे वी विल हैव टू फॉलो दैट, ताकि एजुकेशन जो सिस्टम है ये डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। इधर मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का एक इजलास आज मारूफ आलिम दीन मौलाना रहमतुल्लाह मीर अल कासमी की ज़ेर सदारत श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुआ, जिस दौरान मौजूदा हालात के तनाज़ुर में कई अहम मामलात पर बात की गई। इजलास के दौरान समाज में पनप रही बुराइयों, मंशियात के बढ़ते रुझान, घरेलू तशद्दुद, तेज़ाब हमले और तारीखी जामिया मस्जिद को नमाज जुम्मा के लिए मुसलसल बंद किए जाने पर फ़िक्र तशवीश का इजहार किया गया और इन मामलात के हल और यकसोई के लिए कई अहम तजावीज़ भी पेश की गईं। हमारी नज़रों में जब हज़रत बल जैसी मुक़द्दस जगह जहाँ जामे मस्जिद से ज़्यादा बड़ा मजमा होता है, जब उसको खोलने में कोई रुकावट नहीं, खानकाह मोहल्ला हमारी सबसे मरकज़ी है, जब वहाँ कोई परेशानी नहीं, शायरी शरीफ में जब कोई रुकावट नहीं, तो क्या वजह है? ये तो क़ल्ब है हमारी मस्जिदों का। जामे मस्जिद श्रीनगर बहुत अहम हैसियत रखती है। मीरवाइज साहब से उनको कोई शिकायत तो हो सकती है, लेकिन उनकी नमाज से क्या शिकायत है? मेराज नबी की तक़रीबात में उनके मानने वालों को उनको दीन की बात बताने में क्या शिकायत है? नमाज की इमामत में उनसे क्या शिकायत है? ये हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत पुरज़ोर हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम जामे मस्जिद को फ़ौरन खोल देना चाहिए और उसके बाद मीरवाइज साहब को वहाँ अपना फ़र्ज़ मनसबी जो उनका कई नस्लों से ख़ानदानी पुश्तों से ख़ानदानी फरीज़ा है उसको अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज कई आरजी मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान एक बार फिर मुतालबा किया कि उन्हें महकमा जात में मुस्तकिल किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। मुलाजमीन ने आइंदा बजट में उनके लिए खुसूसी मुराद का भी मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट जो फोरम है हमारी जम्मू कश्मीर में, और आज हमारी जो मीटिंग थी, आज आने वाले जो हमारे प्रोग्राम आएंगे आगे, इसलिए आज हमारी मीटिंग थी। और उसके साथ साथ आज हम इस प्रेस कॉलोनी में एक बार फिर अपना जो हमारी जो एसोसिएशन है उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए। आपको पता है कि हम बिल्कुल 20-25 सालों से हमारी यही डिमांड है कि एक तो हमारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो जल्द से जल्द वो लाई जाए और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेज एक्ट है वो जम्मू कश्मीर की जो यूटी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए।
इधर नाज़रीन, हालिया बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर के कई दूर अफ्तार इलाकाजात अभी भी ज़िला सदर मकामात से कटे हुए हैं, जबकि बेशतर में अभी तक बिजली सप्लाई भी बहाल नहीं हो सकी है। सब डिवीज़न उड़ी के गोहालन, दुदुरान और चूटाली की मुकामी आबादी ज़िला सदर मकामात से कटी हुई है, जिसके बायस उन्हें कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरहदी इलाका गोहालन में बिजली दस्तयाब न होने की वजह से आबादी गुप्त अंधेरे में है। इन इलाकाजात ने GK वेब TV के ज़रिए आला हुकाम से इस जानब तवज्जो देने की अपील की है। उधर सरहदी ज़िला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में आज पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात जब्त करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बालाकोट सेक्टर के गांव से भारी मिकदार में हेरोइन बाजियाब की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसमें यह है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारा ये इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के, नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनका एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक्स को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसे काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, JNK पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज़ में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च ऑपरेशन चलते रहें और हमें इसमें सफलता मिले। इसी असना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे अफसर्स लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो के करीब नारकोटिक्स रिकवर हुआ है, जिसमें हम FIR लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेस होंगे, जो उसमें आगे के कुछ निकलेंगे क्लूज होंगे, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।